Hello everyone, welcome back to my channel. So today is class 11 of mental health nursing, and in this class we will discuss about a very short and important topic, that is Mental Health Care Act 2017, that is passed by Government of India. And this act, basically what it does, it provides the right of patient with mental illness and their treatment delivery. So the consent and all, what all the right mental health illness person possessed, right? So the first right, that is capacity to make mental health care and treatment decisions. So जितने भी mental illness person है, all person have right to make capacity to make decision regarding their mental health care and treatment. Everyone have right except, है ना? So if these three condition is fulfilled, this all mental health illness person can take their decision regarding mental health care and their treatment, right? So the first condition क्या होना चाहिए? Can understand the information provided to them. So whatever the information the psychiatrist will provide to them, they are able to understand, है ना? So like depressive disorder है, if the psychiatrist is telling about all the diagnosis, the treatment, the medication, if they are able to understand, then they have right to make decision. ठीक है ना? सेकंड क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर डिसीजन. लेट्स सपोज अ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, वो उनको दे नीड अ एडमिशन इन द हॉस्पिटल. सो दे नीड एडमिशन इन द हॉस्पिटल. अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, सो दे कैन हार्म टू देमसेल्व्स, है ना? सो इफ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, you can harm themselves or others, है ना? So if they are able to understand the consequences, then also they have right to make the decision regarding their treatment. Okay, and third condition क्या होना चाहिए? Can communicate their decision. मतलब whatever the person is telling, they are able to express themselves, they are able to communicate their decision. Then if these three conditions are fulfilled, then this mental health illness person have capacity, have right to make decision and about their treatment, right? So the first one is that capacity to make mental health care and treatment decision, all person if they are unable to understand these 3 points, right? The second जो हमारा right है, that is advance directive. So advance directive is something related to कि वो कुछ advance में लिखेगा, है ना? advance में कुछ papers पे लिखेगा. So everyone except minor can make an advance directive, like how they wish to be treated or not treated for mental illness if developed. So like let's suppose a patient है, वो एडवांस में एक प्रॉपर पेपर पे डॉक्यूमेंट कर देता है कि अगर मुझे मेंटल हेल्थ इलनेस होता है तो मुझे ट्रीटमेंट लेना है, मुझे एडमिशन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, वट एवर देयर चॉइस, इफ ही और शी राइट ऑन देयर पेपर, है ना? सो द साइकेट्रिस्ट हैव राइट कि वो उनके जो पेपर पे उन्होंने जो भी राइट्स जो भी उन्होंने लिखा है उसको फॉलो करने का है, ठीक है ना? सो दिस इज द एडवांस डायरेक्टिव. Every person can make an advance directive how they wish to be treated or not treated for mental illness if developed. So applicable only if loss of capacity to make mental health care or treatment decision. So उसने पहले से ही पेपर पे लिख दिया कि अगर लेट्स सपोज मुझे कुछ स्किज़ोफ्रेनिया होता है सीवियर वाला, मुझे एडमिशन की नीड होती है, तो मुझे एडमिशन नहीं करने का है, मुझे घर पे ही जो भी ट्रीटमेंट होगा वो देने का है, मुझे एडमिशन नहीं करना है. So अगर उसने ये लिख दिया है ना, एंड नाउ he is if they lost the capacity to make the mental health care or treatment decision, so उन्होंने जो एडवांस डायरेक्टिव लिख रखा है उसको फॉलो करना है ना? So that is the duty of psychiatrist. And let's suppose उन्होंने ऑलरेडी एडवांस डायरेक्टिव में पेपर पे डॉक्यूमेंट किया था कि मुझे एडमिशन नहीं करना, एंड इफ एनी अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, इफ ही और शी harm themselves or others, then doctor is not liable for that, है ना? So second one is advance directive, and the third one is nominated representative. Nominated representatives में क्या है कि every person can appoint a nominated representative. Let's suppose a person
हु सेड कि लेट्स सपोज अगर कुछ मुझे मेंटल इलनेस होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, सो माय वाइफ विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग एडमिशन एंड ऑल द थिंग्स। सो वो एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर देगा, है ना। सो इन केस ऑफ लॉस ऑफ कैपेसिटी, अगर उसकी कैपेसिटी लॉस हो जाती है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव वुड हेल्प इन टेकिंग डिसीजन अबाउट द ट्रीटमेंट, राइट। बट अगर लेट्स सपोज इस पर्सन ने एडवांस डायरेक्टिव भी कर रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट भी कर रखा है एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, सो उन्होंने एडवांस डायरेक्टिव में डॉक्यूमेंट कर रखा था कि मुझे एडमिशन नहीं करने का, एंड जो उसकी जो लेट्स सपोज उसकी वाइफ है जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो कहेगी नहीं एडमिशन करने के है, सो क्या फॉलो किया जाएगा, एडवांस डायरेक्टिव को फॉलो किया जाएगा, है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। एंड द फोर्थ वन इज regarding admission. So in the psychiatrist there is two type of admission. First is independent admission and second one is supported admission. So independent admission में क्या होगा कि जो डिजीज पर्सन है, जो मेंटल हेल्थ इलनेस पर्सन है, सपोज किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, वो खुद एडमिट होएगा, है ना। सो द डिसीजन इज टेकन बाय द पर्सन इटसेल्फ, है ना। सो दैट इज द इंडिपेंडेंट एडमिशन। एंड सेकेंड वन इज द सपोर्टेड एडमिशन में क्या होगा कि जो उसके नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव लाइक पेरेंट्स और वाइफ और ब्रदर सिस्टर जो भी है वो डिसीजन लेंगे, देन इट इज टर्म्ड एज सपोर्टेड एडमिशन, ठीक है ना। सो दिस इज द रिगार्डिंग एडमिशन। एंड द फिफ्थ वन इज बैन ऑन डायरेक्ट ईसीटी। सो अर्लियर इट वाज लाइक जो ईसीटी था इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, दैट इज डायरेक्ट था, जिसमें एनेस्थीसिया एंड ऑल यूज नहीं करते थे। सो नाउ इट इज डायरेक्टली बैन हो गया। अब जो हमारा इनडायरेक्ट ईसीटी हम यूज करते हैं, जिसमें हम एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेंट एंड ऑल यूज करते हैं, अर्लियर इट वाज डायरेक्ट ईसीटी, वो क्या हो गई है, बैन हो गई है। एंड सिक्स्थ वन इज बैन ऑन ईसीटी फॉर माइनर्स, है ना, जो माइनर्स बच्चे हैं उनमें भी ईसीटी बैन हो गया है। एंड द सेवेंथ वन इज बैन ऑन साइको सर्जरी। बट लेट्स सपोज इफ देयर इज नीड, है ना, लेट्स सपोज अ चाइल्ड विथ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, उनको लोराज़ेपम दिया एंड जो कैसी है वो नहीं हुई, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, एंड नाउ इट्स नीड कि उनको ईसीटी चाहिए। सो इन दैट केस जो साइकियाट्रिस्ट है वो क्या करेंगे, वो एक लेटर भेजेंगे, किसको, मेडिकल रिव्यू ऑफ बोर्ड, है ना, उनको लेटर भेजेंगे एंड आफ्टर दैट डिस्कशन एक डिसीजन लिया जाएगा। सो इन दैट कंडीशन हो सकता है, बट डायरेक्टली दे इज बैन ऑन ईसीटी फॉर माइनर्स एंड बैन ऑन साइको सर्जरी। बट इफ दे इज नीड, वेरी सीवियर नीड, देन दे इज लेटर गिवन टू दिस मेडिकल रिव्यू बोर्ड एंड प्रॉपरली रिव्यू होगा एंड देन डिसीजन लिया जाएगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग बैन ऑन ईसीटी फॉर माइनर्स एंड बैन ऑन साइको सर्जरी। एंड नाइन्थ वन इज डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। तो अर्लियर व्हाट इज दैट, लाइक सेक्शन 309 जो आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी सुसाइड करते थे ना उनको पनिशमेंट मिलता था, ठीक है ना। बट नाउ अंडर दिस एक्ट, अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, व्हाट इट इज सेड कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं उन पेशेंट को, उन पर्सन को आप पनिश नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनको प्रॉपर केयर की जरूरत है, उनको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है ना, उनको आप पनिश नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। So there is discriminalization of suicide attempt. And the last one is restraint and seclusions. So in that what happen कि आप किसी भी जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, आप उनको ऐसे रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो, है ना, रिस्ट्रेन या फिर सेक्लूजन नहीं कर सकते हो। इट इज डन ओनली इफ इट इज द वे टू प्रिवेंट द हेल्प हार्म टू सेल्फ एंड अदर। अगर वो खुद को, सेल्फ और अदर्स को अगर वो हार्म कर रहा है, देन इट इज नीडेड एंड दिस ऑथोराइज इज गिवन ओनली बाय साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज। अगर उन्होंने बोला कि यस देयर इज नीड, तभी आप उनको रिस्ट्रेन या फिर सेक्लूजन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे किसी भी पेशेंट को आके लाइक हैंड को रिस्ट्रेन और सेक्लूजन नहीं कर सकते हो। सो दिस 10 important act that is given by Mental Health Care Act 2017 that you have to remember, बहुत सिंपल है, राइट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक जो कि एग्जाम में आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।